also on my computer. I request you to start the recording at your end also. And Okay. last thing would be to just cross check Shalini madam once again. Shalini ma'am, just hang on na, Yeah. Anjali ma'am, Yeah. because I don't want ki in meanwhile there should be some kind of problem. Okay. Shalini She's ma'am, can you muted. speak something? यस सर। हाँ मैम, थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज आएगी। आवाज आ रही है। Okay ma'am, thank you very much. Okay, okay. Anjali ma'am, over to you. And Well, Yogesh sir slide आप देंगे ना? स्लाइड ठीक है, मैं शेयर कर लेता हूँ, है ठीक ना? है। हाँ, Okay. लेकिन आप बैकअप रखे रहो ना अपने एंड से, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। हाँ, ठीक है सर। मैम कब मेरे को शेयर करना है ये थोड़ा बता दीजिएगा, है ना? आप you start with the slide. हाँ, स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। बहुत ठीक है, दीदी? मैं तब तक के बाकी And, लोग को फिर म्यूट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। है ना? एक Okay. मिनट मैम। Yeah. So let us start this session. Good morning, everyone present here. First of all, I would like to thank Principal Madam, Mrs. Manisha Singh, Academic Coordinator, Mr. Ghanteshwar Rao, Mrs. Supam Bhattacharya, Mrs. Mansi Chakravarti, Mr. Sumit Chatra, Mrs. Rekha Narayan, then Mrs. Kusum Singh, Mrs. Jyoti Kamra ma'am, Mr. Sanjeev Jaiswal, and all the other school authorities and dignitaries who have joined this session and have given their valuable time for the session. And lastly, welcome to all my dear students. Please, students, I would like to say something. I want all of you to be responsive, give answers in the chat box, and also please turn on your video, if possible for you. So, bachcho, this year is full of challenges. Challenges like online studies. और अब तो क्लासेस में फ्रेंड से बात भी नहीं कर सकते। स्कूल जाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी हट गया, क्यों? सही है ना? Challenges पूरी है। For classes 9, it is time to study seriously and think about your career. And for classes 10th, it is high time. It is time for boards, and that too COVID-19 impacted boards. आप पहला बैच होगे जो बोलोगे कि एक पेंडेमिक में हमने बोर्ड एग्जाम दिए, हमने कैसे पढ़ाई करी, तुमको क्या बताएं। जब बाद में बड़े हो जाओगे तो लोगों के पास बोलने के लिए आपके पास एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो. सो यू आर द मोस्ट चैलेंज्ड क्लास, आप एंड क्लास 12 दे आर द मोस्ट चैलेंज्ड वन, बिकॉज आपको पढ़ना भी पूरा है क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है. एंड इसके अलावा यू हैव टू फाइनलाइज योर स्ट्रीम्स फॉर क्लासेस 11th. 9th में बहुत सोच लिया और अब तो लॉक करने का टाइम आ गया है. स्कूल से फॉर्म आता ही होगा कि भाई आप कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहे हो. इट्स हाई टाइम. सो स्टूडेंट्स, so much you have to do and so less time. My god, you are all on the first step of shaping of your future. Do you agree? आपका फ्यूचर क्लास 9th, क्लास 10th और अगर क्लास 8 के बच्चे हैं तो क्लास 8, इन क्लासेस से आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो. दिस इज अ करेक्ट टाइम. एंड इसमें यू डेफिनेटली नीड समवन टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, सो दैट आप जो सोच रहे हो, जो फ्यूचर में आपको गोल अचीव करना है, वो गोल तक पहुंचने का रास्ता कोई तो चाहिए आपको. Here comes Akash, with whom you are going to have your session today. What do you think? Who is Akash? क्या चैट बॉक्स में बच्चों आप आंसर भेजोगे? Who is Akash according to you? Quick, quick. I want your answers in chat box.
आकाश आज आपसे मिलने आ रहा है यहाँ इस सेशन में. Do you know who is Akash? No clue. Sky. Wow, Rupal Jain. Sky. Nice. This shows that you are attentive. Thankful to you. An astrologer. ओहो, किसी ने लिखा है करियर काउंसलर, मोटिवेटर. अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, हाउ कैन एनीबडी प्लान योर फ्यूचर when one doesn't know you, can't even see your faces? So how can one advise? Yes, I'm getting the answers. Motivator, astrologer, you are ठीक है, you are thinking on the right track. But एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर आपको जानता ही नहीं आकाश, तो आपके बारे में वो क्या करियर डिजाइन करेगा, क्या प्लान करेगा? चलो, कुछ बच्चे स्मार्ट भी होते हैं, they must be googling it. ये आकाश क्या भला है? Let me see. Let me tell you who is Akash. Akash is a team from an international organization, Junior Chamber International Durg Bhilai, which hosts Hoslo Ki Udan every year. As you can see on your screen, this is the team Akash. Okay, Akash means Asman, the highest height. Final step of excellence one wants to reach in any work, one does. किसी काम में आपको हाइट पर लास्ट पोजीशन क्या है, आकाश पे पहुंच गए, उसके आगे तो जाना नहीं है. So Akash here is an acronym made from the initials of the trainers who are going to take this session. Let me introduce. Akash ka A stands for Anjali Lakhotia. JC Ret Anjali Lakhotia, that's me. Hello everyone. Then Akash ka K stands for Dr. Kavish Gajwani. इसके बाद आता है A again. This stands for JC Anubhav Jain. इसके बाद आता है S. This S stands for JC Red Shalini Patel. And H is for the program called हौसलों की उड़ान. देखो नाम में ही कितना जोश है, हौसलों की उड़ान. उड़ान कहाँ जानी है? आकाश में. So this team has been giving motivational sessions to hundreds and hundreds of students from school all over Chhattisgarh since last 7 years under the program called Hoslo Ki Udan. And believe me students, many of the students have reverted back with lots of appreciation and thankfulness after listening to the session and following the tips being discussed here. So next 60 minutes, you are going to be with us. So be attentive, and I bet you won't sleep because we will be putting questions across you. तो चलिए सबसे पहले ये बताइए, how can you take benefit from us? I would like answers again in the chat box. What do you think? How can you take benefit from us? हमारा यहाँ होना आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? Any answers in the chat box? By taking tips and tricks? Are they saying good? Okay. Fine. Advice भी कर सकते हैं, right? Oh, we will be planning for your future. Wow, we'll inspire you and give success mantras. Very nice. But एक चीज बताओ बच्चों, hang on now, no more answers now. Just ये बताओ, फ्री में एडवाइस कौन देता है आजकल? Think. एक रीजन ये हो सकता है यहाँ आने का कि आपकी टीचर ने बोला आज कोई आएंगे मोटिवेशनल सेमिनार लेने, तो बच्चों आप लोग आ जाना. एक ये रीजन हो सकता है कि फाइन, लेट्स सी क्या नया मिलने वाला है हमको, है कि नहीं? ऐसा हम सोचते हैं कि चलो देखते हैं थोड़ी देर. Well, you'll get new things to learn. Good. Now tell me few answers. When was DPS Jagdalpur established? I want answers again in chat box. And it's nice to see you guys are very interacting. Good. Radhika is correct. 2012. Fine. Next question. Fine. Nancy ने भी ठीक आंसर दिया है. Now, what is the motto of DPS school? Aryan Agarwal ने कहा 2012. It's okay. What is the motto of DPS school? Service before self. Radhika is very fast at typing. Good. Rupal Jain, same answer. Anjali, same.
Good. Everybody knows about this, that school कब बना है और आपके school का motto क्या है. Now tell me, when was DPS society established? DPS society जो कि DPS आरकेपुरम में है, जो main head है DPS का, school का. When was this society established? Any idea? Well, ये थोड़ा tricky था. 1949. Good, good, good. Very smart. Google भी बहुत अच्छा चला लेते हो बच्चों आप लोग, and you are smart enough to answer. That's nice. चलो, so everybody knows, yeah, few of you know that DPS was established in 1949. चलो ये बताओ, who invented mobile phone? Google कर लो जल्दी से. मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया है? दिन भर हम लोग मोबाइल से खेलते रहते हैं. मीटिंग भी मोबाइल में, पढ़ाई भी मोबाइल में. हैव यू एवर थॉट इसको किसने बनाया है? Well, let me give the answer this time. This is Martin Cooper, along with his friends also. Then there is one more question. How many are the founders of Facebook along with Mark Zuckerberg? Answer in chat box. 2, no. Mark Zuckerberg के अलावा और कितने थे? 1, नहीं, 1 भी नहीं है. Shubham Aryan, no. 4, Bhavya is right. Bhavya Mahavar, she gave the right answer. कि 4 जने हैं जो मार्क जुकरबर्ग के साथ फेसबुक का जिन्होंने फाउंडेशन रखा था. So, एक चीज आप ये देखिए, you guys, all of you, some of you rather know all the answers, or few answers. Some are clueless, some are sitting just like that. But just think of this: you come to same school, have same set of teachers, have parents at home, yet why there is difference in capabilities? कुछ तो अलग है सब में. आज वही गैजेट आप सबके पास है, पर किसी ने आंसर 1949 फौरन दे दिया. कोई बैठा था कि चलो बताएंगे तब सुन लेंगे. So everybody, I would say, everybody is born with some intelligence, and it is up to us what we do with it. Intelligent आप सभी हैं बच्चों. आप अपनी इंटेलिजेंस को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, किस तरह से यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और एक ये जो एज है आपकी 14-15, in this age you are smart enough to at least think for your future. Now tell me, what do you think, how long can a career span be? जो बोलते हैं ना करियर क्या बनाओगे, जब कोई अंकल आंटी पूछते हैं बेटा क्या लोगे 11th में, क्या सोचा है आगे बनने का, सब लोग पीछे पड़े रहते हैं क्या करना है, ये करियर आखिर है क्या. सबको बड़ी उत्सुकता रहती है. कोई आइडिया है आपको करियर कितना लंबा रहता है? 20 years, 30, 40? Well, एक मैं आपको कैलकुलेशन देती हूँ. आर्यन इज राइट अगेन, 40 years. बिकॉज आप ऐसा समझ लो कि 25 की एज तक you are grown up enough to earn a decent livelihood, and till the age of 65 you work hard to earn that livelihood. So this gives 40 years of your life. So this is the maximum number of years of life you are going to spend in earning a livelihood and at the same time enjoy the life. जब इतना मेजर आपके साल जो निकल रहे हैं इसमें, तो क्या आपको इस करियर को शेप करने के लिए सोचना नहीं चाहिए? Isn't it the time to think for your career or for your destiny? See, if you board a bus or a train, you just don't go and sit in a bus. कोई प्लान रहता है ना कि भाई मुझे यहाँ जाना है, ट्रेन में बैठ के भाई मुझे दिल्ली जाना है. ऐसे ही कोई ट्रेन में जाके नहीं बैठते एमलेसली. सो दिस इज अ टाइम फॉर यू. ये एजुकेशन जो आपने नर्सरी से आपने अपना ये ट्रैवल शुरू किया है एजुकेशन का, आज आप 8th-9th में आ गए हैं. अब एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको सोचना जरूरी है कि आपको आगे क्या करना है. आपको यू हैव टू सेट गोल्स इन योर लाइफ विच मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं है कि बस यही सोचना है कि मुझे बड़े होके क्या बनना है. अरे ये भी सोचो कि 10th में मार्क्स कितने लाने हैं. ये भी सोचो कि 9th में कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी है. यू नो, आपको प्लान जरूर करना अब शुरू कर देना है कि आपके आगे जो जो पड़ाव आते जा रहे हैं उसमें आपको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है. और ये जब गोल जब आप सेट करते हो, दिस गोल सेटिंग विथ इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, this will not only slide you down from reaching your destination, but also in the process
This will give stress and tension to you all. So in this session, we are going to discuss all these aspects with our experienced trainers. आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, इसमें हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं. We'll talk about career, we'll talk about goals, we'll talk about time, how to manage your time, and we'll talk about how to manage the stress. So for this, let me call our first trainer, JC-led Dr. Kavish Gajwani. Now let me tell you about Kavish Gajwani. He is a final year MBBS student and he is rendering his selfless duty in hospitals even in COVID-19 pandemic. So I welcome JC-led Dr. Kavish Gajwani to give his views and share his ideas on career and goal. Over to you, Kavish. Thank you so much, Anjali aunty. Hello everyone, good morning. I hope my voice is clear and all of you are able to hear me. Yes, Kavish, we can hear you. Okay, thank you. So, before I start with my topic, that is career, goal and goal setting, एक कैजुअल सी बात पूछता हूँ आप सभी से, या नॉर्मल सी बात करते हैं. आप सभी ट्रिप पे तो गए होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में. तो हम ट्रिप पे जाने से पहले क्या क्या करते हैं? पहले तो जगह गूगल करते हैं कि हमको कौन सी जगह जाना है. सपोज हिल स्टेशन जाना है या कोई हिस्टोरिक जगह जाना है जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिले, या बीच जाना है या कोई ऐसे पॉपुलेटेड टाइप की जगह में जाना है. तो हम सब पहले सर्च करते हैं कि हमको कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है. फिर हम टिकट्स करवाते हैं एंड फॉलोइंग शॉपिंग करते हैं. और फिर हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मतलब थ्रू आउट द ट्रिप, कि हमको एक डेस्टिनेशन जाना है, घूमना है. हम पूरा गूगल करते हैं, सब करते हैं. तो किसी ने ये सोचा है कि कोई लाइफ में कहाँ जाना चाहता है, मतलब लाइफ में भी आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है. तो क्या आज की डेट में कोई ये सोच रहा है कि मुझे लाइफ में कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, या फिर किसी ने प्लान करना स्टार्ट किया है कि मुझे ये चीज़ें पसंद है तो मैं इन चीज़ों में जा सकता हूँ, जैसे कि हम ट्रिप प्लान करते हैं. आप चैट में आंसर दे सकते हैं. ओके. सो सक्सेसफुल सबको होना है लाइफ में. तो मैं आपसे जान सकता हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है. मेरे को चैट, आई एम नॉट एबल टू रीड द चैट. ओके. स्टडी, फोकस, मेहनत, हार्डवर्क, प्लानिंग, राइट, नाइस. तो आप ये बताइए. ओके, ठीक है. ओके 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 ओके. तो आप ये बताइए कि सिर्फ मतलब जैसे किसी ने कहा मेहनत, कॉन्फिडेंस, फोकस, तो क्या सिर्फ फोकस या मेहनत से काम हो जाएगा? तो इसका आंसर है सिर्फ मेहनत या फोकस से नहीं होगा. सपोज करिए सक्सेस राइट में और आप पूरी जी जान लगा के लेफ्ट में मेहनत कर रहे हैं, या पूरा फोकस आपका लेफ्ट में, आप पूरा जी जान लगा दे रहे हैं लेफ्ट में, तो आपको सक्सेस मिल पाएगी क्या? नहीं मिलेगी. तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज है मेहनत से, फोकस से, उससे भी पहले आपके पास एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए. जब तक आपके पास आपको अपने लिए एक सही डायरेक्शन नहीं पता है, तब तक आप एक सही जगह हार्डवर्क करके, फोकस करके, मतलब सक्सेस मिल सकती है पर चांस थोड़ा सा कम हो जाता है. तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप ड्राइंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आप सिंगर बनने के लिए या म्यूजिशियन बनने के लिए पूरा जी जान लगा दे रहे हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है. मतलब चांस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर आप ड्राइंग करें. मतलब आप ड्राइंग में टैलेंटेड हैं, उसमें आप थोड़ा सा भी हार्डवर्क और करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो एक राइट डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम हार्डवर्क भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी सही है, हमने गोल भी सेट कर लिया है, पर जाने या अनजाने में हम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं. तो आप सभी को गलत रास्ता और सही रास्ता दोनों पता होना चाहिए. तो सबसे पहले गलत रास्ता क्या है? व्हाट इज द रॉन्ग ट्रैक? किसी भी तरह का, किसी भी इंसान, किसी भी स्टेट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से एडिक्शन, मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, एडिक्शन मतलब लत लगती जा रही है अपन को किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी फीलिंग से अगर लग रही है तो आप समझ जाइए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं. एग्जाम्पल, अभी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मोबाइल है. हम सब एकदम एंडलेसली मोबाइल यूज कर रहे हैं, मतलब सो के उठेंगे मोबाइल, खाना खाते टाइम मोबाइल, मतलब छोड़ा ही नहीं जा रहा है, एकदम लत लग गई है मोबाइल की. तो ये गलत ट्रैक है.
मतलब आपको लत लगती जा रही है तो वो गलत ट्रैक है, आपको खुद ही समझ जाना है। पर आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि मोबाइल इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टूल। मोबाइल में कोई भी बुराई नहीं है, इनफैक्ट ये सेशन भी मोबाइल से ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो जब तक आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं तब तक इट्स अ वेरी गुड टूल। जब मोबाइल आपको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि आप गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रैक, मतलब रॉन्ग ट्रैक तो समझ गया अपन को। राइट ट्रैक क्या है? राइट ट्रैक समझने के लिए सबसे एकदम इजी एग्जांपल ये है कि अभी हम स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप चैट में बता सकते हैं। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टडिंग, स्टडिंग, राइट राइट राइट, वेरी गुड। तो अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, पढ़ना। तो माना अभी आप जॉब के लिए केपेबल हो, आप बिजनेस के लिए भी केपेबल हो, बहुत हवाई महल बना सकते हो, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं कर सकते ना। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया हूँ तो मेरे को डॉक्टर बन के ही निकलना है, ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। और मान लीजिए मैंने मेडिकल कॉलेज बीच में छोड़ दिया या आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो नेक्स्ट काम करोगे उसको बीच में नहीं छोड़ोगे, या उसके बाद जो करोगे उसको नहीं छोड़ोगे और छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार अपने लिए सोच समझ के सही डिसीजन लेना है। सही डिसीजन लेने से पहले आपको 1000 बार, लाख बार सोचना है कि ये ट्रैक मेरे लिए सही है कि नहीं। पर एक बार डिसीजन आपने ले लिया तो आपको उसमें अपना 100% डालना है, उसके बाद बैक ऑफ नहीं करना है। तो डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचिए। तो अब मैं आपको मोटिवेशन सेशन आज किस लिए देने आया हूँ? पढ़ाई करने के लिए। मेरे को मोटिवेशन सेशन इसलिए तो नहीं देना पड़ रहा है कि बेटा थोड़ा टाइम मोबाइल में स्पेंड कर लिया करो, या अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाए करो, या थोड़ी मूवीज देख के आया करो, क्यों नहीं देखते हो? ये सब के लिए हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ऐसा क्या हो हमारी लाइफ में, ऐसा क्या हो, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, या हम ऐसा क्या सोचें कि हमारे अंदर से पढ़ाई आने लगे खुद से। मतलब आपके मॉम डैड आके आपको बोल रहे हैं, आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं बेटा थोड़ा ब्रेक ले लो, या बेटा थोड़ा कम पढ़ो, पर फिर भी आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा क्या होगा? कोई गैस कर सकता है क्या कि ऐसे अंदर से पढ़ाई कैसे आएगी? ओके, मोटिवेशन, मोटिवेशन एक लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, ओके ओके, तो मैं बता देता हूँ। आपके अंदर से पढ़ाई तभी आएगी जब आपके पास उसको करने की एक वजह होगी, एक बहुत बड़ी वजह होगी। मतलब आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ऑब्वियसली अब सबके ये क्वेश्चन आ ही रहा हो, मतलब एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सपोज आप डेजर्ट में हो, ठीक है, आप डेजर्ट में लॉस्ट हो, 2 दिन से आप डेजर्ट में लॉस्ट हो, आपके पास पानी खत्म हो चुका है, आप पूरी धूप में पसीने से लथपथ घूम रहे हो, सिर्फ एक ही चीज, क्या ढूंढ रहे होगे आप? तो उस टाइम आपके माइंड में पानी के अलावा और कुछ चल रहा होगा क्या? मतलब आप कहीं से भी कुछ भी और सोच नहीं पाएंगे, आपके माइंड में सिर्फ पानी और सिर्फ पानी ही चल रहा होगा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर अपने माइंड को एक डायरेक्शन या एक फोकस दे दिया जाए, या फिर आपका मतलब सिचुएशन वैसी हो जाए, तो आपका माइंड सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेगा। उस टाइम तो आप नहीं सोचोगे कि रास्ता ढूंढ लेता हूँ, या मोबाइल तो नहीं चलाओगे, या और कुछ करने का नहीं सोचोगे, सिर्फ पानी। तो ऐसे ही आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आपने वो वजह ढूंढ ली, आपके अंदर से बर्निंग डिजायर आ गया कि मुझे तो पढ़ना है, तो ये कैसे होगा? बर्निंग डिजायर कैसे आएगा? ऑब्वियसली आप सभी को क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी मेरे अंदर उतना डिजायर नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि लाइफ में हर इंसान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मेरे पास भी, आपके पास भी, और सबके पास। उसको लाइफ में कुछ करना है या उसको लाइफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या इसको ऐसे भी समझिए कि आपको जीवन जीना है या आपको जीवन काटना है। तो ऑब्वियसली सबको जीवन जीना ही है। तो आपने एक गोल सेट कर लिया, आपके अंदर से डिजायर आ गया कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है, या मुझे जॉब करना है, अच्छी जॉब लेनी है, उसके लिए मुझे अभी पढ़ना है, या आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है अभी के लिए, मुझे फिजिक्स में 80 मार्क्स लाने, उसके लिए मुझे पढ़ना है। तो आपके अंदर से पढ़ाई आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर से पढ़ाई ना आए। तो करियर में ये 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शंस और राइट डायरेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स गोल। सबको सक्सेसफुल होना ही है करियर में, सबको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए। सो इफ यू वांट टू सक्सीड, यू हैव टू सेट गोल्स, बिकॉज विदाउट देम
मतलब आपने सोच लिया कि मुझे सक्सेसफुल करियर चाहिए, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. So you have to set goals because without them you will lack focus and direction. So to accomplish your goal you must know how to set it up properly. But before goal setting I would like to tell you a story. एक story से मैं आपको goal का बहुत ही easy explanation देता हूँ, आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. ये कहानी है 1938 की. कैरली नाम के एक व्यक्ति की. वो हंगेरियन आर्मी में था. हंगरी एक जगह का नाम है. कैरली हंगेरियन आर्मी में था. वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था. पिस्टल बोले तो हैंडगन. वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था. उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी वो सबको जीत चुका था. और उस कंट्री में सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि वो 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा. तो 1938 में क्योंकि वो आर्मी में थे और उनका गोल फिक्स था, मतलब उनका एक ही गोल था. उन्होंने सालों से मेहनत की थी. उनको एक ही गोल था कि उनको इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है. बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है. उनका एक ही गोल था और वो कामयाब हो भी गए. उन्होंने बेस्ट बना लिया. सिर्फ 2 साल का फर्क था 1938 से 1940. तो क्योंकि वो आर्मी में थे तो आर्मी में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और एक एक्सीडेंट हो गया. तो जिस हाथ से उनको गोल्ड मेडल जीतना था उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ उनका चला गया. उनका पूरा फोकस, पूरा गोल जो उन्होंने सेट किया था वो सब खत्म. तो उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे. या तो वो एक किसी कमरे में जाके छुप जाएं और रोने लगे और कभी बाहर ना निकले, या फिर जो उनका गोल है जो उन्होंने सेट किया है उसको पकड़ करके रखें. तो उन्होंने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था बल्कि उस पे जो उनके पास था. और उनके पास क्या था? एक लेफ्ट हैंड. तो 1 महीने उनका हॉस्पिटल में इलाज चला. 1 महीना उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और करेक्ट 1 महीने बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आए एंड उन्होंने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकते थे, उसकी ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी. तो करेक्ट ट्रेनिंग के 1 साल बाद, दैट इज 1939 में वो आया. हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी. वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पिस्टल शूटर्स आए हुए थे. तो वो वहाँ गए और सब पिस्टल शूटर्स ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया. बोला कि देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि आप यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी आप यहाँ आए हो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमको देखने के लिए. किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से क्या कर रहे थे. तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तैयार हो जाओ मुझसे लड़ने के लिए. तो वहां जितने लोग थे, कंपटीशन हुआ, वहां जितने लोग थे सब अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे और कैरली अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था. और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया. तो उनका गोल फिक्स था. उनको इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था. तो उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें. तो 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो कैंसिल हो गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर. पर फिर भी वो हार नहीं माने. उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से. फिर से कैंसिल. अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1938 में उनकी एज थी 28 ईयर्स और 1948 में उनकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स. और आप सभी को पता होगा कि जो यंग प्लेयर्स निकल करके आते हैं उनसे compete करना मुश्किल होता चला जाता है. पर ये मुश्किल नाम का शब्द था ही नहीं उनके डिक्शनरी में. तो 1948 में ओलंपिक्स में वो गए. वहां वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए थे जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से compete कर रहे थे. और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली फिर से जीत गया. पर वो यहाँ भी नहीं रुके. उन्होंने अपना सारा फोकस कहाँ डाल दिया? 1952 ओलंपिक्स. वो गए, कंपटीशन हुआ और गोल्ड किसको मिला? फिर से कैरली. वो फिर से जीत गए. और इसके बाद उन्होंने पूरी हिस्ट्री को पलट करके रख दिया. इससे पहले इस कंपटीशन में किसी भी एथलीट को कॉन्जिक्यूटिवली 2 साल तक गोल्ड मेडल नहीं मिला था. तो आप किसी भी लूजर के पास चले जाइए, उसके पास 1000 वजह होंगी कि ये रीजन थे, ये रीजन थे, इस वजह से मैं लाइफ में फेल हो गया, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया. और
दूसरी तरफ आप किसी भी विनर के पास चले जाइए, उसके पास 1000 वजह होंगी वो काम ना कर पाने की जो वो करना चाहता है, और उसके पास एक वजह होगी वो काम करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। तो everybody wants a gold medal, but only few people want to train like an Olympian. तो यहाँ से आप सभी के मन में आ गया होगा कि हमें भी गोल सेट करना है और हमें भी ऐसा फोकस्ड रह के अपने गोल की तरफ काम करना है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको गोल सेटिंग आना चाहिए। तो गोल सेटिंग, देखो एक स्टोरी से अपन को ये भी पता चल सकता है कि गोल रखना बहुत ही आसान है। मतलब कौन ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता है, या कौन किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं बनना चाहता है। और इफ आई टॉक अबाउट योर लेवल, कौन नीट, जेडब्ल्यू ये सब एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं करना चाहता है? एवरीबडी वुड वांट दैट, आप सभी चाहते होंगे। तो द रियल चैलेंज इज नॉट व्हाट यू वांट, मतलब आपका गोल क्या है या आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। चैलेंज वो नहीं है, चैलेंज वो है कि वो रिजल्ट तक पहुंचने में जो आपको सैक्रिफाइस लगेगा, जो आपकी लाइफ बन जाएगी वहां तक पहुंचने के लिए, क्या वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में कई सालों तक 12 आवर्स, 15 आवर्स, 18 आवर्स, 22 आवर्स अ डे पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना नीट पीजी क्रैक नहीं होने वाला। तो डॉक्टर कौन नहीं बनना चाहता है? हर कोई बनना चाहता है, पर जो जर्नी है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्या आप लोग? डायमंड का भी एग्जाम्पल है, कौन हीरा नहीं बनना चाहता है? पर कोल को बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जब तक नहीं पकाया जाए तब तक डायमंड नहीं बनता है। तो अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मैं रिपीट करता हूँ, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान देम स्मार्टली। आपको अपने गोल को बहुत स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि गोल तो हर कोई सेट करता है और हार्डवर्क हर कोई कर रहा है, पर फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो अब स्मार्ट गोल की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एब्रीवेशन आप सभी को स्लाइड में दिख रही होगी। स्मार्ट गोल्स में स्मार्ट, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल और एक्शनेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक और रेलेवेंट, एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ बहुत छोटे इजी एग्जाम्पल से। स्पेसिफिक, योर गोल मस्ट बी वेरी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग गोल तो सेट करते हैं पर बहुत ही जनरलाइज और वेग टाइप का गोल सेट कर लेते हैं। मतलब सपोज जैसे मेरा साइंस वीक है, तो मैं गोल सेट कर लिया, या आपने गोल सेट कर लिया कि आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये गोल क्या गोल है। मतलब ये ठीक है, गुड मार्क्स स्कोर करने पर क्या, कितने मार्क्स, मतलब कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है ये गोल में। तो अब मोर स्पेसिफिक गोल वुड बी, एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे कि साइंस में आप पर्टिकुलरली आपको पता है कि आप फिजिक्स में वीक है, तो आपका गोल क्या सेट करना है आपको स्पेसिफिक में? आई विल स्टडी फिजिक्स फॉर 2 आवर्स ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। आपको ऐसा गोल स्पेसिफिक सेट करना है, तभी आप उस पर एक्शन ले पाओगे कि फिजिक्स में मैं वीक हूँ। और मोर स्पेसिफिक, इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, यू हैव टू सेट आई विल स्टडी ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर आप उसमें वीक है तो आपका गोल इतना स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल से हम ये समझते हैं, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर गोल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब आप अपने गोल को ट्रैक कर पा रहे हो और उसको मेजर कर पा रहे हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस, तो आप इसको मेजर कैसे करोगे? तो you need to define exactly how much marks you want to score. A much better goal would be I want to score 75 or 80 out of 80. आपको ऐसा गोल सिलेक्ट करना है, I want to score 75 और 80 out of 80. तो सपोज आप अभी स्कोर कर रहे हैं 55 या 60 स्कोर कर रहे हैं और आपने गोल सेट किया है 80, तो यहाँ से एक और जो निकल करके आता है गोल, वो ये है कि आपको 80 जो है, आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। तो 80 इज अ लॉन्ग टर्म गोल। ओके, 80 शुड बी योर लॉन्ग टर्म गोल एंड यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स। मतलब अभी आप 50 स्कोर कर रहे हैं, आप नेक्स्ट टेस्ट में 80 स्कोर नहीं कर पाओगे, बहुत कम चांस है कि आप 80 स्कोर कर पाओगे। तो आपके मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि यार 80 हो पाएगा कि नहीं, तो आप थोड़ा सा पैनिक करने लग जाओगे। तो अपन को उसको शॉर्ट गोल्स में ब्रेक करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स में, विच इज मोर मैनेजेबल एंड अचीवेबल। तो अगर आप अभी 60 या 55 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको 80 तक स्कोर करने से पहले उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करना है। दैट इज
आपको एक गोल सेलेक्ट करना है कि मैं पहले नेक्स्ट टेस्ट में 65 स्कोर करूंगा या 60 स्कोर करूंगा, फिर 70 स्कोर करूंगा, फिर 75 एंड देन 80। तो 80 शुड बी योर लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो आप 65 अचीव कर पाएंगे तो आपको नेक्स्ट टेस्ट में दिख जाएगा कि आप 65 अचीव कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह से मेजर कर पा रहे हैं कि हाँ मैं बेटर कर रहा हूँ, तो मैं मोटिवेटेड भी रहूंगा। नेक्स्ट, एज यू कैन सी इन स्लाइड, योर गोल मस्ट बी एक्शनेबल और अटेनेबल। ठीक है, तो मेक श्योर इट्स पॉसिबल टू अचीव द ड्रीम यू सेट फॉर योर सेल्फ। कोई भी अपने लिए इम्पॉसिबल गोल सिलेक्ट नहीं करना चाहता है। जैसे कि अभी आप मतलब साइंस में मान लीजिए आप फेल हो रहे हैं, तो आप ऐसा गोल नहीं सिलेक्ट कर सकते कि मेरे को 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है या 75 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप फेल हो रहे हो तो एक्शनेबल नहीं रहेगा, और हो भी सकता है आप उस पर एक्शन लेने लग जाओ कि मैं अगले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ टाइम बाद आप लॉन्ग टर्म में डिमोटिवेट हो जाओगे, आप उस पर गिव अप कर दोगे। तो फिर से यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल सिलेक्ट करना है अपन को अपने लिए कि अभी मैं फेल हो रहा हूँ, तो मेरा जस्ट नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि पहले मैं एटलीस्ट पास हो पाता हूँ। फिर आप पास हो पाओगे तो आपको पास होने के में एक्शन भी लेना रहेगा, मतलब आप एक्शन लोगे उसके लिए। 80 में हो सकता है कि नहीं आप एक्शन लो थोड़े टाइम बाद। तो योर नेक्स्ट एम, शॉर्ट टर्म एम शुड बी एटलीस्ट आई विल पास and then I will increase my marks consecutively 5 to 10 marks in each test to score 80 out of 80. So your goals should be challenging yet achievable. बहुत ही important part है, your goal should be challenging yet achievable. Impossible goal select नहीं करना है। You don't want to set yourself up for failure by trying to go far beyond the bounds of possibilities. Next, as you can see in slide, realistic. Your goal should be realistic or relevant. Relevant मतलब relevant to your long term goal. अब इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ, या फिर उससे पहले अपन ये देख, मतलब अपना कॉमन इशू ये है कि अपन बहुत सारे गोल सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, पढ़ाई भी अच्छी करनी है, वो भी सीखना है, सब कुछ करना है, तो अपन किसी गलत गोल को परस्यू करने लग जाते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे गोल्स में। तो जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे जर्मन सीखने का बहुत मन था। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए, तो मुझे जर्मन सीखने का बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि बहुत अच्छी लैंग्वेज लगती है मेरे को। पर थोड़े ही टाइम में मैंने रियलाइज किया कि मैं जर्मन सीख तो लूंगा पर वो यूजलेस है मेरे लिए, क्योंकि ना मैं किसी से अभी जर्मन में बात कर सकता हूँ अपने आसपास, ना ही कोई मेरे आसपास जर्मन बोलता है। तो इसीलिए आई स्टॉप लर्निंग इट एज इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ, मतलब टाइम भी बहुत लग रहा था। इट इज टेकिंग टू मच ऑफ माई टाइम एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट करंटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी उसको मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को उससे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसको सीखना छोड़ दिया। सो यू शुड आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल बिफोर यू कमिट टू इट। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आपने गोल तो सिलेक्ट कर लिया पर क्यों करना चाहते हो आप वो गोल, और आपने सिलेक्ट किया तो आपका गोल लॉन्ग टर्म गोल में, मतलब मैं जर्मन सीख जाता पर नीट में कैसे हेल्प होती, अभी तो नहीं हेल्प हो पाती उससे कुछ मेरी। तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचाने में आपको हेल्प करना होना चाहिए। तो आप वाई क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से तो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट, टाइम बाउंड। यू मस्ट हैव अ डेडलाइन, क्योंकि अगर आप टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम रहेगा, और अनलिमिटेड टाइम में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी आपको स्कूल्स में होमवर्क मिल रहा होगा, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, या समर वेकेशन में सबसे इजी, समर वेकेशन में अपन को प्रोजेक्ट मिलता था, इवन मेरे को भी। तो अपन कब करते थे, जब छुट्टियां खत्म होने वाली थी पूरी, एकदम एंड के 2 दिनों में करने लग जाते थे। तो ऐसा, इससे क्या समझते हैं अपन काम तभी करते हैं जब अपन को डेडलाइन दे दी जाती है या फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं रहती है उस टाइम पे। तो यू शुड सेट टाइमलाइन फॉर टू अचीव योर गोल। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कहा था कि आई वांट टू स्टडी फिजिक्स फॉर 2 आवर्स ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये टाइम बाउंड गोल है, मैं नेक्स्ट वीक में अपना फिजिक्स इंप्रूव कर ही लूंगा 2 आवर्स डेली पढ़ के। ठीक है, तो लास्ट थिंग ये तो ठीक है, अपन ने सेट कर लिया स्मार्ट गोल, अपन ने सीख लिया। अब इससे लास्ट चीज ये समझनी है अपन को कि सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि हमने एक बार गोल सेट कर लिया, हमारा गोल भी स्मार्ट है तो हम गोल अचीव कर लेंगे, हमारी लाइफ सेट है। पर ऐसा नहीं है। आपके गोल, ये गोल सिलेक्ट करना, गोल सेटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलता रहेगा वो, इट नेवर एंड्स। एंड योर गोल्स एंड योर प्लान्स मस्ट बी रिवाइज्ड टाइम टू टाइम। जैसे आपने शॉर्ट टर्म गोल सिलेक्ट कर लिया 65 मार्क्स का, उसको अचीव किया तो खत्म नहीं होती बात वहां, या 80 मार्क्स अचीव कर लिए तो खत्म नहीं होती बात, आपको उसको रिवाइज करना है और बड़े गोल्स
सेट करते जाना है. So it's an ongoing process which needs revision and re-evaluation. Thank you so much. Well, thank you, Dr. Kavish. Thank you. Smart बच्चों को smart goals explain करने के लिए thank you, Dr. Kavish. Now let's see. बच्चों एक game खेलें? Chat boxes are there. Yes or no? You want to play a game? Well, I'm waiting for another. Good. Yuvraj is ready. Anjali is there. Atishi. Oh, everybody is ready. Fine, fine, fine. So on the screen, you can see jigsaw pieces, right? अब आपको ये बताना है कि इससे आप क्या बनाने वाले हो. What figure can you foresee which can be made from joining these jigsaw puzzle pieces? Answer in chat box again. Time to wake up. Time to think. क्या बनेगा इससे? जिक्सा पजल के पीसेस को जोड़ के क्या शेप आ सकती है? Somebody raised hand. No, I would like answer in chat box, please. Acha, somebody has written box. Okay. What else? Box, rainbow, cube, puzzle. Wow. Very creative. Rekha ma'am, if you're there, then you must be proud to see. बच्चे बहुत creative हैं. They can see yes, the colors. I am seeing the response. So nice to see such good response. I'm so happy to see. And with the colors, they are assuming it in a, you can say right direction की colors है तो rainbow बनेगा. Fine. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. Now next slide हम देखते हैं. फिर हम इसके बारे में बात करेंगे. Next slide please. Square or rectangle, colorful square. Fine. अब इससे आप क्या बना सकते हो? Can you flag? Aryan is right. Flag. और कोई? UK. आयुष ने लिखा flag. Fine. Everybody is smart enough and they can give the answer. बच्चों आप बिल्कुल सही हो. This is like if you join all these pieces, you'll get a flag. अब UK का है कि US का है, इस डिटेल पे हम नहीं बात करते हैं. अब इन दोनों गेम से आपने क्या समझा? Chat box again. कुछ भी like one word or few words, one sentence answer. What do you think these two jigsaw puzzle का जो game है, it has given you a message? Creative, Bismay Kumar, okay. Joining, अपेक्षा ने कहा join करना है. किसको join करना है बेटा? Creativity, Aryan ने कहा. Good. Okay, everybody is now keen to answer. That's nice to see that everybody is there to answer. Now let me tell you what I have perceived from this jigsaw puzzle ka game. If you try, you can do everything. Okay, fine. पर एक चीज बताओ, आपको सेकंड वाले jigsaw puzzle में मालूम था कि ये किसी देश का फ्लैग है. So you were so spontaneous to give the answers. फटाफट फ्लैग कर दिया. मतलब कोई चीज अगर आपको मालूम है, if you know something, then you can get it. Isn't it amazing? First वाला जो था, वो तो किसी ने square लिखा, किसी ने rainbow लिखा, वो कुछ भी नहीं बन रहा था. Actually, it is just random pieces kept here and there. But second वाला जो flag का jigsaw pieces है, it makes a flag. और इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस चीज को हम जानते हैं, जिस चीज को हम देख पा रहे हैं, हम उस तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं. Isn't it? The same goes with your career. अभी जो आपको डॉक्टर कविश ने बोला कि भाई आप अपना सोच लो, आपका इंटरेस्ट क्या है, अपना गोल स्मार्टली कर लो. क्यों बोला उन्होंने? उन्होंने इसलिए बोला कि आप ये तो पता होना चाहिए जाना कहाँ है. और केवल इंटरेस्ट से काम नहीं होगा. आपको पता है बच्चों, एक लॉयर, एक मेरी बेटी को लॉयर बनने का बहुत शौक है. शी इज डूइंग करियर इन लॉ. पर एक लॉयर को कभी आप फिल्मों में देखते हो कि एक लॉयर का रूम है, वहां पे केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, हीरो हीरोइन वहां पे बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा चीज जो प्रोमिनेंट है लॉयर के कैबिन में, वो क्या दिखती है? एनी गेसेस? एक लॉयर के कैबिन में टेबल पे उसके पीछे आपको कौन सी चीजें दिखती है? फाइल्स, केस फाइल्स. गुड. और बुक्स. यथार्थ इज 100% राइट. राधिका इज ऑल्सो राइट.
You get to see books and books and books. तो केवल ये सोचना पॉसिबल नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट लॉयर बनने का है, मुझे लॉयर बनना है. अरे लॉयर को दिन भर पढ़ना भी पड़ता है, पता है, उसको हर केस के बारे में जानना पड़ता है, देश विदेश में कैसा केस आया, उसमें क्या जजमेंट आई. He has to know each and everything, and everyday reading is only the solution. जब वो रोज पढ़ता रहेगा ना बंदा, तब उसको चीजें दिमाग में आएंगी और उसको अच्छे केसेस मिलेंगे. भाई अल्टीमेटली मनी इज द फैक्टर ऑल्सो. तो ओनली इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. दैट इज आई वांट टू से. खाली ये मत सोचो मुझे डांसर बनना है. अरे डांसर बनने लायक बॉडी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रेनिंग के लिए आपके पास कोचिंग का ऑप्शन है. ऐसा नहीं कि मुझे शेफ बनना है. शेफ बनने की जो नैक चाहिए, जो आप में काबिलियत होनी चाहिए, वो नैक भी होना जरूरी है. ओनली इंटरेस्ट नहीं, आपका उसमें एप्टीट्यूड भी होना चाहिए. और ये दोनों चीजें जरूरी है, बट विद अ टाइम. अ गोल विदाउट डेडलाइन इज यूजलेस. व्हाट इफ यू वेस्ट योर प्राइम इयर्स ऑफ स्टडीज? ये जो 5 साल अभी पढ़ने हैं, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ग्रेजुएशन, ये प्राइम ईयर है पढ़ाई के. इसमें अगर अपन ने पढ़ाई नहीं की तो आगे का क्या होगा? मान लीजिए आपका कल कोई एग्जाम है और आपने सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, रात में हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, तो ऐसी पढ़ाई से फायदा है? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कोई भी एम्बिशन को फुलफिल करने का. चाहे वो डिबेट की प्रैक्टिस हो. आपके स्कूल में डिबेट जरूर होती होगी और उसमें मैम दे देती है 2 मिनट बोलना है, 3 मिनट बोलना है. आप उसी मिनट टाइम फ्रेम में अपने आप को सेट करते हो. कितना जरूरी है अपने आप को उस फ्रेम में सेट करना, बिकॉज टाइम ऐसी चीज है जो कभी आ नहीं सकती. तो ये टाइम को यूज करना बहुत जरूरी है. तो टाइम मैनेजमेंट विच लीड्स टू द रोड टू अचीव योर गोल्स. इसके सेशन के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट JC Red Shalini Patel, who looks after administration of Indo IT School in Bhilai. She is one of the director of Ojasvi Edicom Bhilai, and she is also a homemaker. Now imagine एक लेडी 3 फ्रंट संभाल रही है. टाइम तो उनके पास भी उतना ही है जितना हमारे पास है. So let us find out how she steals time out of a busy schedule and fulfill her passion. So I invite her to share her ways to manage time. JC Red Shalini Patel, over to you. Thank you, Anjali Bhabhi. Good morning, friends. And I thank Dr. Kavish Kajwani, sir, for your session on goal setting. And I also would like to thank the school authorities and JCI Durg Bhilai. अपने टॉपिक की शुरुआत में आपसे एक सवाल से करना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? रुपये, डॉलर, करेंसी या कुछ और? गुड. आर्यन टाइम बोले. मैं ये क्वेश्चन का रिप्लाई यही है कि टाइम सबसे एक्सपेंसिव चीज है. टाइम जो हम सबके पास है एक बराबर है. 24 आवर्स मेरे पास भी है, 24 आवर्स आपके पास भी है. 24 आवर्स मीन्स 86,400 सेकेंड. और हर सक्सेसफुल पर्सन के पास सिमिलर टाइम होता है. जब एक बार हमारे पास से चला जाता है तो उसे किसी भी एक्सपेंसिव रुपये, डॉलर से खरीदा नहीं जा सकता. इसलिए फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे एक्सपेंसिव चीज है टाइम, उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. अ गुड टाइम मैनेजमेंट हमें स्मार्ट बनाता है. गुड टाइम मैनेज करने से हमेशा बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाते, वो भी बहुत थोड़े समय में. फाइनली हम अपने करियर को एक सक्सेसफुल मोड़ पर ले जाते हैं. फ्रेंड्स, टाइम मैनेज करने में हमें 4D की जरूरत पड़ती है. जिसमें सबसे पहले है डू, डिलीट, डेलीगेट और ड्रॉप, जिसके बारे में मैं आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाना चाहती हूँ. आप स्क्रीन में एक स्लाइड देख रहे होंगे जिसमें खाली जार, प्लेन जार रखा हुआ है जो कि हमारा टाइम है. दूसरे जार में रॉक्स देख रहे होंगे आप, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जैसे स्टडीज, एग्जाम प्रिपरेशन एंड फैमिलीज. तीसरे जार में आप पेबल्स, जो हमारे लेस इम्पॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि हॉबीज. और फोर्थ जार में आप देखिए सैंड भरी हुई है, जो हमारी लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. अगर मैं आपको बोलूं
कि सबसे पहले सभी चीज़ों को आप प्लेन जार में डाल दें, और अगर आपने सबसे पहले उसमें प्लेन जार में सैंड डाल देते हैं, फिर छोटे पत्थर, फिर उसमें बड़े पत्थर फिल करते हैं, तो ये हमारा इनकम्प्लीट टास्क रहेगा, मीन्स यू विल लूज। बट एक और तरीका है, यदि हम प्लेन जार में सबसे पहले हम रॉक्स डालते हैं, मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जैसे एग्जाम, एजुकेशन, स्टडीज एंड हमारी फैमिली, अगर हम इससे पहले इंसर्ट करें, उसके बाद यदि उसमें हम छोटे पत्थर डालते हैं, मीन्स पेबल्स, तो जो हमारे लेस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, और उसके बाद यदि हम सेंड डालते हैं, मीन्स हमारी जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो हमारा टास्क आसानी से पूरा हो जाएगा और हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसे कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको 4D के बारे में बता रही थी उसे एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, फर्स्ट do the most important work, delay the less important work, and finally delegate or drop the least important work in your life for your career. And finally friends, आपको कुछ स्टडी शेड्यूल बताना चाहती हूँ। प्लान शेड्यूल ऑफ बैलेंस एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, हमें डेली एक्टिविटीज में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे कि ईटिंग, क्लासेस, और कुछ काम फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे कि स्लीपिंग। इसलिए हमें बैलेंस एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को उसकी इम्पोर्टेंस या वेटेज के हिसाब से ही टाइम अलॉट करना चाहिए, जैसे कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इन्हें प्रॉपर टाइम अलॉट कीजिए। और जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और EVS, उनको अलग। और पढ़ाई करने का एक निर्धारित समय और एक निर्धारित जगह होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। और आपकी क्लास कंप्लीट होने के तुरंत बाद अपने नोट्स को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि यूज टॉपिक ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। अगर स्कूल टाइम में हमें ऑड पीरियड या ऑड आवर्स मिलता है, तो उसे बेस्ट तरीका है यूटिलाइज करने का रिवीजन, वो भी रिव्यू के साथ। वैसे टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मुझे इतना ही टाइम अलॉट हुआ है। Well, that's all from my side. Thanks a lot. Good day. Okay, Shalini ma'am, you are done, right? Okay, sir. Over Okay, to you, okay, Anjali okay. ma'am. Yes. Yeah, thank you. So, बच्चों, back again, okay? I'm Anjali and I'm back here. Right, ma'am. Fine. ये commitment word दिख रहा है आपको slide पे? So, commitment में कितने तो M है? और M मतलब I am वाला M। तो ये कमिटमेंट आपको क्या बोल रहा है कि बस जो चीज के पीछे लग जाओ, उसको छोड़ना नहीं है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कौन आपको बता रहा है ये देखो भाई आ गया भाई, सब बच्चों का, सबका। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्यों बच्चों, ये डायलॉग तो आपको बहुत पसंद होगा ना। अब केवल डायलॉग पसंद मत करो, इस डायलॉग को अप्लाई भी करना शुरू कर दो। ओके, बिकॉज कमिटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको पुश करेगी। फाइन। शालिनी जी को सबसे पहले थैंक्स फॉर हर क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड scheduled way of time management. तो बच्चों, what we have seen that interest, aptitude, hard work, this together can help you to get good marks, to get good goals. अभी आप स्टूडेंट हो तो मेन गोल यही रहता है नंबर अच्छा आ जाए ताकि मम्मी पापा घर में खुश रहे। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो टीचर वहां खुश रहे। So to get good marks is one of the main objective. But it does happen that एग्जाम्स या प्रोजेक्ट सबमिशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सब जब चीजें आती है ना तो एक बार बहुत स्ट्रेस हो जाता है। यू मे गेट टेंस्ड अप। वैसे आप लोग सब बहुत स्मार्ट हो, आई नो,
बट एट टाइम्स इट हैपन कि भाई यार कंप्लीट ही नहीं हुआ सिलेबस और कल टेस्ट है और मैम तो भाई खोज खोज के क्वेश्चन पूछती है, पता नहीं बुक के किस कोने में लिखा रहता है. So this tension can be, good and as well as bad also. कभी कभी टेंशन अच्छी भी होती है. ये भी एक नई बात आप लोग सुनने को मिल रही होगी आपको हमसे कि टेंशन भी अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि टेंशन में कई बार हम अपने आप को सुपर फाइन कर लेते हैं, अपने आप को शेप कर लेते हैं और हम उस टारगेट तक अचीव कर पाते हैं जो हमने पहले सोचा भी नहीं था. खैर, ये तो बात हुई टेंशन गुड और बैड, पर जो भी हो, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में सबको है. चाहे वो छोटा बच्चा है जिसको दूध की बोतल नहीं मिल रही है, चाहे वो बड़ा आदमी है जिसके पैसे जो है आ ही नहीं रहे, या शेयर मार्केट बढ़ नहीं रहा है. किसी भी चीज में टेंशन हमको हो ही जाती है. टू ओवरकम दीज टेंशन, सबसे पहले क्या जरूरी है? सेल्फ मोटिवेशन. आपको दिन भर कोई बोलने नहीं आएगा, अरे कोई बात नहीं बेटा इतने नंबर आए, अगली बार और पढ़ लेना. अरे कोई बात नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद तू और पढ़ लेना. आपको सेल्फ को मोटिवेट करना है. हर बार मम्मी पापा नहीं आएंगे बल्कि डांट के ही जाएंगे, बोला था ना मोबाइल पे मत खेलना. सो टेंशन को रिलीव करने के लिए आप एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और इसके साथ कुछ बेसिक ट्रिक्स है. इन ट्रिक्स को शेयर करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे एजुकेशनिस्ट जैसे अनुभव जैन, who is a director of ओजस्वी एडुकॉम. सर आएंगे और आपको बताएंगे कि स्ट्रेस को कैसे हम साइड कर दें और मेंटल रेस्ट पे रहें, मेंटली हम फ्री रहे और इस स्ट्रेस को हम पॉजिटिवली कैसे हैंडल करें. ओवर टू यू जेसी अनुभव जैन. Yeah, ma'am. Very, very, I can say good afternoon to all of you. Thanks to the school authority and thanks to JCI Durg Bhilai for giving me an opportunity in my. Am I audible to everybody? Yes. Okay. So thanks to, once again, I would like to thanks to the school authority and a very heartfelt thanks to JCI Durg Bhilai and my team कि मेरा फेवरेट टॉपिक उन्होंने दिया है स्ट्रेस मैनेजमेंट. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, हम लोग बात एजुकेशन और स्टडीज की कर रहे हैं. डेफिनेटली स्ट्रेस हम एजुकेशन से रिलेटेड ही होंगे. एंड मैं आप लोग के पेशेंस के लिए भी आप लोग को अप्रिशिएट करता हूँ कि सिंस यू आर लिसनिंग टू अस फॉर द लास्ट 40 to 45 मिनट्स. बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको और कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ. फ्रेंड, जैसे एक मिशन होता है वैसे ही प्रेजेंटेशन भी हमारा एक मिशन है. हम चाहते थे कि आपको करियर के बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. आप लोग को भी लगता होगा यार कि हर बार कोई ना कोई आगे करियर गाइडेंस बताता है हम लोगों को, ठीक है, बट वो ये सब चीजें जरूरी है. लाइफ के स्टेज में जब भी हमको कोई हमारे करियर और हमारे एजुकेशन के बारे में बोलता है तो हमको उसको ईगरली सुनना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जिस्ट होता ही है. ठीक है, अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो उसमें डेफिनेटली गोल सेट करना है. गोल सेट करोगे, अगर बगैर टाइम मैनेजमेंट के करोगे तो गोल अचीव नहीं होगा. और जिस दिन आप टाइम अचीव करने लगोगे या गोल पे भागने की कोशिश करोगे आपको स्ट्रेस होगा. बट फ्रेंड्स, हर एक स्ट्रेस, वो बोलते हैं ना, एक ऐड आता है, हर एक दोस्त ब्ला 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 नहीं होता. वैसे ही हर एक स्ट्रेस जो है वो भी ब्ला ब्ला नहीं होता. देयर आर जनरली 2 types of stress. Can anybody guess ki what kind of stress I'm talking about? I will be happy if I'll get a reply from you in my chat box. What are the 2 kind of stress? Okay, good and bad, distress and all stress. Good. Things should come out always. Friends, I just want to ask one thing. ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है. Nice participation from the students. It was a very awesome, I can say, the school environment and feeding by the faculties to the students. They are participating on regular basis. Okay, fine. Friends, एक पेन है, कोई इसका मुझे 5 to 10 uses बता सकता है within 1 minute? I will definitely applaud that student. Writing, yes. Immediately 5. Something which you need to be exceptional. Writing, good. There he is telling writing, yes. There, apart from writing, anything else you want to share? Hand exercise, very nice. Soumya Rai, hand exercise, very nice.
Distress. I'm not getting you. Okay, Aryan Agrawal. Well, it's just a mind to paper. Okay, it can be an ideal gift to the officials. हम बर्थडे में जाते हैं तो पेन गिफ्ट करते हैं उनको. पेन एक गिफ्ट की तरह भी यूज हो सकता है. वैसे तो पेन के करीब 100-150 यूजेस हैं, बट पेन द वर्ल्ड प्रिफर्स पेन इज मच माइटियर देन स्वॉर्ड एज वेल. So let us come back to the topic. Students, there are two types of stress. Definitely हर stress बुरा नहीं होता, जैसे हर दोस्त blah blah नहीं होता. In this picture you can see in the left side the person was smiling, and the right hand side the person was resisting himself. That shows the difference between two types of stress. Friends, good stress जो है आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करता है, आपको मिशन पे रखता है और हमेशा आपको मोशन पे रखता है. जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके स्कूल में कौन ऐसा है कि जो ही इज अ वेरी गुड डांस परफॉर्मर और सिंगर्स? इफ एनीबॉडी कैन रिप्लाई इन माय चैट बॉक्स. कौन है जो बहुत अच्छा गाना गाता होगा? डेफिनेटली बहुत सारे स्टार्स होंगे अपने पास. ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं या बहुत अच्छा डांस करते हैं? आशांक गुप्ता, ओके. सोनाली श्रुति प्रिया, ठीक है. आरना, गुड गुड, वेरी नाइस. lot of appraisal, lot of applause to you all for your talent. ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम एज अ सिंगर या एज अ डांसर हमारे स्कूल से हमको कोई टास्क बोला जाता है कि बच्चों कि एनुअल फंक्शन आने वाला है और आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आपको थोड़ा सा लगता है अरे यार एक और काम आ गया, बट पैरेलली आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हो बिकॉज यू आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन दैट. आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप जिस चीज को आपको ऐसा लगता है कि आप अचीव कर सकते हो, वो स्ट्रेस बुरा नहीं होता, वो स्ट्रेस आपको आगे बढ़ाता है. बट व्हेन इट कम्स टू बेड स्ट्रेस, इट इज अ लॉस ऑफ मोटिवेशन, इट रिड्यूस इफेक्टिवनेस, लेड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम. जब भी हम किसी अपने अनफेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि चलो आज 2 घंटे में हम कोशिश करते हैं इसको फिनिश इट ऑफ करेंगे. 10-15 मिनट के बाद क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, लॉजिकली थोड़ा सा वीक हूँ, लेकिन अगर मैंने सोचा मुझे 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, जनरली 20 मिनट के बाद क्या होगा अगर लगातार मैं पढ़ूंगा? आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, इरिटेशन होगा, आई फील बोर्ड ऑफ गुड. ऐसा ही होता है मेरे साथ भी, बोर्ड, यस यस यस, फाइन. ऐसा ही होता है, हम लोग 20 मिनट के बाद किसी को पीठ दर्द करती है, अचानक से सर दर्द होने लग जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि दैट सब्जेक्ट वाज नॉट एज पर माय टेस्ट. लेकिन अगर मैं वही म्यूजिक का सब्जेक्ट पढूं और 2 घंटे अगर मैं म्यूजिक सीखूं तो क्या होगा? एनीबॉडी कैन गेस? आई एम अ गुड सिंगर. इंटरेस्ट, गुड. इंटरेस्ट, प्रथम झा, ठीक है. इंटरेस्ट, यस. अगर मैं एक सिंगर हूं और मैं सिंगिंग क्लासेस ले रहा हूं तो मैं उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ 2 घंटे भी मैनेज करूंगा, है ना. सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस मैनेज करना जानते हैं क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे सब्जेक्ट्स में भी परफॉर्म करना है और वो सब्जेक्ट्स में भी परफॉर्म करना है जिसमें वी आर पुअर या फिर वी आर, जहां हमको ऐसा लगता है कि हम एवरेज हैं. नेक्स्ट स्लाइड योगेश जी. फ्रेंड्स, ये स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, कोई बता सकता है ये क्या है? Heartbeat. Okay, good. Anybody else? Good. ठीक है, I will let you know. ये एक ECG रिपोर्ट है, definitely it is related to our heart only, है ना. ECG रिपोर्ट में अगर सीधी लाइन आती है ना तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है the person is no more. But जब उसमें ऊपर नीचे होती है, ग्राफ जब ऊपर नीचे हो, that shows कि the person is live. In every life there is ups and downs. अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहा है मतलब आपकी लाइफ चल रही है, मतलब आप नॉर्मल स्टेज में. तो डेफिनेटली जब आप गोल अचीव करोगे तो आपको स्ट्रेस तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड योगेश जी. नेक्स्ट स्लाइड वन सभी. स्लाइड चेंज कर, नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए. ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देना चाहूंगा जिसको हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं यूज किया है, इसलिए आज किसी मुकाम पर हैं हम लोग.
इसलिए आप लोग अभी नए हो, अभी से आपको करियर बनाना है, तो ये कुछ चीजें अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ऑन डेली बेसिस पे, डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ। मैं सबसे पहला आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, रूल्स की। ट्रिक योर माइंड। आपका दिमाग एक टसल है, उसको आप जैसा ट्रिक करोगे वो वैसा रिएक्ट करेगा। स्ट्रेस कुछ नहीं होता, एक इवेंट होता है, और इवेंट का कोई मीनिंग नहीं होता, इसको मीनिंग आप देते हो। अगर आप किसी भी इवेंट को पॉजिटिव सोचते हो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर किसी इवेंट को आप नेगेटिव सोचते हो तो वो नेगेटिव ट्रेंड में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। फ्रेंड्स, कैन एनीबॉडी मेक अ गेस हु इज ही? ये जो बंदा बल्ला पकड़ के खड़ा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्स प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, बट एनीबॉडी कैन मेक अ गेस? सुनील गावस्कर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। एनी मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू आर हैविंग तो आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू लुक एट दैट। हु इज सुनील गावस्कर? सुनील गावस्कर, चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहता हूँ। सुनील गावस्कर सर की एक यूएसपी थी। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, कुछ एक यूनिक चीजें होती है। सुनील गावस्कर एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने टाइम पे 34 सेंचुरीज बनाई, और ये एक अपने आप में इतना महानतम रिकॉर्ड रहा कि अगले 20 साल तक कोई भी क्रिकेटर उसे तोड़ नहीं पाया था। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। लेकिन सुनील गावस्कर सिर्फ सेंचुरी पे ही नहीं रहते थे, वो सेंचुरी को डबल सेंचुरी या 170 150 में भी कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनका एक स्टाइल था। जैसे वो सेंचुरी बनाते थे, वो फिर से बाउंड्री से दौड़ते हुए वापस क्रीज पे आते थे, फिर से गार्ड लेते थे, और एम्पायर से पूछते थे कि मेरा मिडिल स्टंप क्या है, ये क्या है। अब उनके जो अपोजिशन प्लेयर है वो बोलते थे, यार आपको कोई अंधविश्वास है क्या कि आप वापस से दौड़ के आते हो? क्या 100 रन बनाने के बाद किसी को ये नहीं पता होगा कि मिडिल स्टंप क्या होता है, लेफ्ट स्टंप क्या होता है? आपको ऐसा लगता है? गुड गुड। यथार्थ ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। सुनील गावस्कर क्रिकेटर भी और कमेंटेटर भी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द नॉलेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यू आर अ लॉन्ग वे टू गो। वेल, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, बट सुनील गावस्कर ने अपने ऑपोजिशन प्लेयर को ये बोला कि बॉस, मैं अगर सेंचुरी के बाद बाउंड्री से फिर से रनअप लेके आता हूँ, अपने पैड पहनता हूँ, गार्ड लेता हूँ, मैं अपने आप को, दिमाग को ये रियलाइज करता हूँ कि नो, आई डिड नथिंग, मैंने अभी स्टार्ट करना है मुझे फिर से। और इसी वजह से वो 100 से सेंचुरी से 170 या 150 तक पहुंच पाते हैं। सेम यही चीज है बीइंग अ स्टूडेंट। हम अगर एग्जाम्स के लिए स्टडी करें, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, अगर 20 मिनट से हमको बोर्ड अप लग रहा है तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप 5 मिनट्स का ब्रेक लो, जाओ ठंडा पानी पियो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो। उस 5 मिनट से घूमने मत जाओ। अपने आप को ये रियलाइज करो कि अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। आपने 2 मिनट्स के जो गोल है, आपको उसको अचीव करना है विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो जस्ट ट्रिक योर माइंड, ठीक है? If you really want to manage stress, don't become warrior, become warrior. आपको चिंतित व्यक्ति नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? एक योद्धा बनना है। The second trick that I want to give you, that is learn from your mistake. Again, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, who is he? Anybody can, everybody is looking at the screen ना? ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये किसकी है आपको पता है? थॉमसन। अच्छा, क्वाइट क्लोजर। एडिशन, पूरा नाम अगर कोई बता देगा तो मतलब मजा आ जाएगा। थॉमस अल्वा एडिशन, जिसमें, वेरी गुड वेरी गुड। सुषमा सिंह। आपके टीचर्स को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेट होता होगा अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रेट करने में। यू गाइस आर रियली रॉक, यू आर रॉकिंग हियर। तो गाइस, आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। ही इज थॉमस अल्वा एडिशन। ही इज द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। बट इनकी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी जीरो से ही। इन्होंने करीब करीब 700 या 10,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया था बल्ब बनाने के लिए, बट एक मिशन था उनका कि मैं एक बार तो सही बल्ब बना लूंगा, ठीक है? तो जैसे ही वो सही बल्ब बन गया, इनके कलीग्स इनको टोकने लगे, अरे यार तुमने तो उतना पैसा बर्बाद कर दिया, यू फेल्ड अप फॉर 10,000 टाइम एंड यू आर सक्सीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली, तो यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। ही सेज कि नो गाइस, आई एम वेरी हैप्पी, आई वाज सक्सीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक पहली बार मैं सक्सेस हुआ, लेकिन आई वाज डूइंग 9,999 टाइम्स ways not to create a bulb। मुझे अगर एक तरीका पता है बल्ब बनाने का, मुझे 99 199 तरीके पता है बल्ब नहीं बनाने का।
दैट इज वॉज हिज स्ट्रेंथ. सो बीइंग अ स्टूडेंट, आपको भी अपने मिस्टेक से लर्न करना है फ्रेंड्स. आपको मिस्टेक्स को ब्लंडर नहीं समझना, कोई डेड एंड नहीं समझना है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक परमानेंट नहीं होती, कोई भी गलती या फिर कोई भी फेलियर परमानेंट नहीं होता. अ सक्सेस फ्रॉम फेलियर इज एन अचीवमेंट, बट अ फेलियर फ्रॉम फेलियर इज अ डिजास्टर. इसलिए अपनी सारी मिस्टेक्स, अगर आपके ट्राइसेम में कोई मिस्टेक्स आपने की है, आप इस मिस्टेक्स को नोट डाउन करो कि किस क्वेश्चन में आपको क्या रिप्लाई करना था जो आप नहीं कर पाए हैं, और उसको कोशिश करो कि लेट अस नॉट रिपीट दोज मिस्टेक इन आवर नेक्स्ट टेस्ट. सो जो भी मिस्टेक आती है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो and just try to make sure your mind ki I'm not going to repeat this mistake any further in future. Okay. And last, sir, next slide. तीसरा ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहूंगा, डू योर बेस्ट. एनीबडी कैन गेस कि किस पिक्चर को क्या बताना चाह रहा है, क्या क्या किस चीज की पिक्चर है ये. वैसे इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी एंड बोल्ड. ओके. एनीथिंग एल्स. मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. इस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ. रनिंग. और कोई अप्रोप्रिएट वर्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड फ्रॉम योर साइड. रनिंग, फील्ड, एथलेटिक्स, रेसिंग, कोर्स. ओके. इसमें एथलेटिक. चलिए ठीक है. अपन इसको मैराथन. यस, दैट वाज अ ब्यूटीफुल वर्ड, मैराथन. श्वेता गुप्ता. गुड. तो ये मैराथन है ना. एंड मैराथन में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर दौड़ रहे हैं एक साथ. जनरली हर एक इंसान मेडल के लिए दौड़ता है, हर एक स्टूडेंट्स फाइट करता है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फर्स्ट आने के लिए. ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड, उसके बाद किसी का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इसके. बट जब इस मैराथन की अपन बात करते हैं, सपोज आपने प्लान किया था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए. आप दौड़ रहे थे, सडनली पता चला कि किसी कोई कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल गया, आपके यहाँ से गोल्ड चला गया, फिर कोई और आगे निकल गया, सिल्वर भी चला गया, उसके बाद कोई तीसरा बंदा भी चला गया, आपके पास ब्रॉन्ज चला गया. इस सिचुएशन में 90% स्टूडेंट ये करते हैं कि अरे यार हो गया, इट्स ओवर, अब तो ना गोल्ड मिल रहा है, ना सिल्वर मिल रहा है, ना मेडल ब्रॉन्ज मिल रहा है, ना ही उस मेडल के बाजू में रखे हुए बुके भी हमको नहीं मिल रहा है, तब हम दौड़ के क्या करेंगे. तो अगर आपने अपने दिमाग को ट्रिक नहीं किया या आपने अपने आप को रियलाइज नहीं किया डू योर बेस्ट, तो डेफिनेटली आप रेस कोर्स छोड़ दोगे, मैराथन छोड़ दोगे. बट अगर आपने सोचा कि नहीं यार, आई नीड टू गिव माई बेस्ट, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, यू गिव योर बेस्ट, फॉरगेट अबाउट अदर्स. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको भूल जाओ, कौन आगे निकल गया उससे भूल जाओ, कौन पीछे रह गया उससे भूल जाओ, बस आप आगे बढ़ते जाओ. और अगर मान लो ये 3 ट्रॉफी भी नहीं मिल रही है ना, तो आप कम से कम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के दिखा दो वहां पे. Yes, I was the best in my country where I have shown. मैंने इतने सेकंड में इतनी लंबी रेस पार की थी. This time I am the best. अगर आप ऐसा करोगे ना कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेगा. और इस स्टोरी के बारे में आपको बता रहा हूँ. इस मैराथन में एक्चुअली जो फॉल्स स्टार्ट था, उसकी वजह से जो बंदा फर्स्ट आने वाला था उसको गोल्ड की जगह उसको हटा दिया गया. जिसको सिल्वर मिलना था उसको गोल्ड मिला, जिसको ब्रॉन्ज मिला था उसको सिल्वर मिला. अब आप चूंकि फोर्थ आए तो आपको क्या मिलेगा बताओ. पहला बंदा जिसको फॉल स्टार्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और आप फोर्थ आए थे, अब आपको क्या मिलेगा इसमें. एनीबडी गेस. ब्रॉन्ज. सौम्या राय. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बट आई कैन से फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द फॉर्चुनेट टू. इसलिए डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट. ये 3 ट्रिक्स हैं जिनको आपको यूज करना है. ठीक है. Things turn out best only for those who made the best out of the way. Things उनके लिए ही बेस्ट होती है जो आउट ऑफ द वे सोचते हैं और हमेशा सक्सेस के लिए ओके करते हैं. फ्रेंड्स, मैं एक बार बस फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि स्ट्रेस के लिए आप सिर्फ सबसे पहला रूल ये कि आप अपने माइंड को ट्रिक करो, पॉजिटिव नोट पे रखो, हर एक इवेंट को, इंसिडेंट्स को पॉजिटिव नोट पे रखो, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. सेकंड ट्रिक मैं वन सेकंड बोलूंगा कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. मिस्टेक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसके रीजंस आइडेंटिफाई करनी है और उसको रेक्टिफाई करते हुए अपने आगे के रिजल्ट सुधारने हैं. तीसरा, कोई भी रिजल्ट लास्ट नहीं होता, इसलिए डू योर बेस्ट. आप बेस्ट करते जाओ. वन फाइंड द बेस्ट रिवार्ड एंड रिगार्ड्स फॉर योर एफर्ट्स. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. आई एम जेसी अनुभव. एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स, आप मुझे चैट पे लिख सकते हो. Well, thank you, JC Anubhav, for
sharing the wonderful ways how to handle the stress. Bachcho, you remember I had asked a question in the beginning. What do you think? How can we shape or how can we help you here? Why are we here? अब आपको समझ में आया हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने सोचा होगा करियर सेमिनार है, मोटिवेशनल सेमिनार है, करियर के ऑप्शंस बताएंगे. करियर के ऑप्शंस तो डेफिनेटली हम बताएंगे ही, हम आपको शेयर करेंगे पीडीएफ जिसमें हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है. पर करियर ऑप्शंस आर न्यूमरस. You know, it may be more than 500 or 600 career options in our country. तो करियर ऑप्शन तो बहुत है, हम भी आपको शेयर करेंगे. पर हम यहाँ क्यों आए हैं? We are here not to shape your career, but to tell you how can you shape your career. आपका करियर आप ही को शेप अप करना है, आपके गोल्स को आप ही को अचीव करना है. So what would be the ways? चाहे वो गोल छोटा सा ही क्यों ना हो, कल सुबह जल्दी उठना है, उठा नहीं जा रहा है, पर कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, ये भी एक गोल हो सकता है. इसके लिए आपको क्या चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन अपार्ट फ्रॉम अलार्म क्लॉक. घड़ी तो बंद हो जाती है, मोबाइल में अपन बजा देते हैं अलार्म और उसको बंद करके फिर सो जाते हैं. तो नॉट ओनली अलार्म और नॉट ओनली मम्मी इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज योर सेल्फ मोटिवेशन विच इज गोइंग टू हेल्प यू कि नहीं मुझे कल उठना है, आई हैव टू शो दैट आई कैन डू इट. आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ये बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक गोल है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है. और इस गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे पड़ाव आएंगे ना, आप वो सेट करते जाओ कि मुझे अभी साइंस लेना है, फिर साइंस लेके आगे जाके इसमें एक्सेल करना है, एंड फर्दर कार्डियोलॉजिस्ट बनने के वेज आपको अपने आप पता चल जाएंगे. यू नो, अगर आप एक चीज सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, क्यूरियोसिटी अगर होगी ना, तो you will be able to achieve whatever you want to do. Why, how, when, whom, ये questions अपने दिमाग में रेज करो. अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो ये क्यों पसंद आ रही है, क्या मैं इस चीज में टिक सकती हूँ? अगर मुझे संगीत पसंद है तो क्या मैं घंटों रियाज कर सकती हूँ? अभी आप बच्चों देखना, अमेजोन में एक बहुत अच्छा शो आ रहा है बंदिश बैंडेड, उसमें इतना सुंदर क्लासिकल म्यूजिक दिखाया गया है, वो देख के तो सबकी इच्छा होगी कि हम क्लासिकल म्यूजिक सीखें. पर आपको पता है उसका डेडिकेशन कितना है? आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं, अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करिए. कोई भी करियर चूज करने के पहले, कोई भी गोल सेट करने के पहले अपना एप्टीट्यूड जरूर एक बार तोल लो. हाँ, मैं इस लायक हूँ, और अपने आप को मोटिवेट करो, अपना हार्डवर्क करो, और साथ में क्यूरियस है, ये क्यों नहीं हो सकता, आई कैन डू इट. एक कहानी आपको सुनाती हूँ और फिर आंसर आप चैट बॉक्स में देना. एक बार पेड़ पे 3-4 बंदर बैठे हुए थे, 4 बंदर थे. उसमें से पहला बंदर डिसाइड करता है कि ये पास में नदी है, चलो नदी में छलांग लगा लेते हैं. तो थोड़ी देर में बताओ कितने बंदर आपको पेड़ पर मिलेंगे? आंसर इन चैट बॉक्स प्लीज. 1, 2, 3, 4, 0. Any number you can write from 0 to 4. What do you think, how many monkeys will be left sitting on the tree when one of them decides to jump in the river? अरे हुसैन बोल्ट से तो इजी क्वेश्चन था बच्चों. आई थिंक यू कैन गिव द आंसर्स. 0 से लेके 4 के बीच में कोई भी नंबर आप लिख दो जो आपको लगता है उतने बंदर बैठे होंगे. वेल, नाइस नाइस. तो एक ने तो लिखा है एक भी नहीं बैठेगा क्योंकि एक कूदा तो सभी कूद जाएंगे. डू यू थिंक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहला वाला केवल डिसाइड किया था. that monkey only decided कि I'll jump. He didn't jump. So it's time to take the action. केवल ये मत सोचो कि मुझे बस नंबर लाना है, 80 out of 80 आना चाहिए, 75 से कम तो किसी सब्जेक्ट में लाना ही नहीं है. Don't just think, take action, do it. हिंदी में एक कहावत है, 5 साल या 50 साल. ये 5 साल मेहनत करोगे आप 11 से लेके 11, 12th एंड ग्रेजुएशन, ये 5 years आप मेहनत कर लो कस के, और 50 साल आपकी जिंदगी सॉर्टेड है बिल्कुल आराम से. you'll have a good livelihood. और नहीं तो 5 साल मजे कर लो और 50 साल रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए बहुत फोकस रहिए अपने करियर और अपने गोल्स के लिए. गोल्स कुछ भी हो, मार्क्स हो, चाहे कोई चैलेंज आप ले रहे हो, उसके लिए आप फोकस रहिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इम्पॉसिबल एक वर्ड है, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल.
इम्पॉसिबल को अगर आप ब्रेक करते हो ना, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर अलग अलग लिख देते हो, तो इट बिकम्स आई एम पॉसिबल. नाउ जस्ट थिंक, एक वर्ड जो कि इम्पॉसिबल है एंड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, तो दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है. सो विद दिस नोट आई वुड से try hard, all the best for your future, and thank you all for being with us and sharing your valuable time. Thank you all. Thank you, Rekha ma'am, and all the other dignitaries of school, whoever is there, to be with us. And thanks to all the students who had been very, I would say, responsive and being chatting with us on the chat box and giving answers. Anjali ma'am, this side Yogesh Rathi. Yeah. Thanks for this wonderful session. Actually, today is a Teachers' Day, and Yeah. Rekha ma'am is here, so I think she should also say something to their students because it's a right platform, and she can give some kind of view ki how was this session. I find it quite energetic and interesting one. Let's see what ma'am replies. Yes, Ma'am. ma'am, your opinion does matter to us. Rekha Thank you ma'am, so over. much. Okay. Thank you so much to the entire JCI team. And I felt that each and every moment of this session was so interesting and like enthralling that I could not move out from my place to just to do any other thing. Everything, and for every child, I think it will be very useful. My students are really very intelligent and very hardworking, but these key words will make little wonders in their life, and if they will plan, like planning and dedication, if they will definitely do, I think they will do wonders in their life. And that is what I could bless them on this auspicious day as a Teachers' Day from my side and from entire teachers who are attending this session. And thank you to all the teachers who are attending for their patience and keeping them occupied on the holiday also. So by all the students, God bless you and do well, and please instill some of these values in your life. That's all I would say. Thank you so much, sir. Ma'am, your session was really wonderful. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot, ma'am. And ma'am, with your permission, should I end this meeting now? Yeah. Yes. Okay. Yes. Thank you so much. But I want a recording of this session so that we can show to principal ma'am also, to our PVC sir also. Sure. And we can also refer to these words again and again. Pakka Rekha ma'am, will be doing the same thing. Just give us Thank some you so time. much. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you very much, students lobby also. Thank you. Thank you all.